Good morning, student. Today we will start chapter number 7. The name of the chapter is permutation and combination. First of all, you have to watch the loop video for the introduction of this part, and after that you have to do these questions. Understand? Now in the first exercise there are very easy. We apply in this exercise we apply only counting principles, fundamental principles, counting methods, not any formula. For example, first question is that how many 3-digit number can be formed from the digit 1 2 3 4 5. हमारे पास 5 डिजिट हैं, उसमें से हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है. एज्यूमिंग दैट फर्स्ट डिजिट क्या है कि रेपिटेशन इज अलाउड. वी हैव टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है. अगर रेपिटेशन अलाउड है तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम कितने फर्स्ट नंबर चूज करने के हमारे पास कितने वे हैं 5. सेकंड नंबर चूज करने के वे भी कितने होंगे 5, और थर्ड नंबर चूज करने के वे भी कितने होंगे 5. तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे 125. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर. सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमारे पास रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है दैट मीन्स फर्स्ट नंबर चूज करने के वे कितने हमारे पास 5. मीन्स एक नंबर अगर एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करना, तो बाद में कितने रह गए हमारे पास 4 वेज रह गए. सेकंड नंबर कोई 4 में से होगा. सिमिलरली थर्ड नंबर कोई 3. 5 4 सा 20, 23 सा 60. दिस इज द आंसर. ओके. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड. द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी इवन नंबर बनाना है. इवन नंबर कितने हैं हमारे पास 2 3 2 4 6. दैट मीन्स इवन नंबर लास्ट का वंस प्लेस होगा. इवन नंबर पे वो लास्ट प्लेस चूज करने के वे कितने हैं हमारे पास 3. और नेक्स्ट 2 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. अब हम चेक करेंगे कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं. वी हैव गिवन दैट कि डिजिट कैन बी रिपीटेड. अगर डिजिट रिपीट हो सकते हैं दैट मीन्स वो नंबर जो यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ भी हो सकते हैं. तो उनके वे कितने हो गए 6 into 6. तो नंबर्स मल्टीप्लाइड 6 into 6 36, 36 into 3 that is of 108. Okay beta, that's very easy. Similarly, how many 4 letters code 10 letters English alphabet no repeated नहीं है. that means हमारे पास वही सेम चीज फर्स्ट के लिए 10, नेक्स्ट के लिए 9, नेक्स्ट 8 and 7. Multiply it this number you get answer. That's very easy chapter. 4th, 5th and 6th you will have to try yourself. Okay बेटा. 4th का मैं हिंट देती थी 5 डिजिट फोन नंबर्स है 0 to 9. the numbers start from 6 and 7. that means 6 और 7 से स्टार्ट हो रहा है 5 डिजिट नंबर है. तो नेक्स्ट 2 डिजिट तो फिक्स हो गए, तो बाकी 10 डिजिट में से कितने डिजिट रहेंगे 8 लेने हैं. 8 में से कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकता है. रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. Okay बच्चा. 5th and 6th you will have to try yourself. Now come to the exercise. This is the exercise 7.1. Now we will do exercise 7.2. In this exercise we will explain only factorial method. What is a factorial? Factorial क्या होता है? Product of natural number is called a factorial. Factorial notation you know very well. Now in the first question is evaluate. We have to find the value of 8 factorial. 8 factorial की value find out करनी है. This is equal to 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now multiply करो बेटा इसको. You get the answer 40,320. Okay. Second part you have to try yourself. Now second part क्या है हमारे पास is 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial. 3 factorial क्या होता है 3 into 2 into 1 plus 4 factorial 4 into 2 into 1. 3 2 सा 6 plus this is 24. ये कितना आ गया हमारे पास 30. 7 factorial ओपन करोगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1.
this is equal to 504. They are not equal. Okay beta, this is your answer. Now question number 3, we have to get solve it 8 factorial upon 6 factorial upon 2 factorial. अब 8 factorial को हम क्या लिख सकते हैं, 8 into 7 into 6 factorial लिख सकते हैं. We know that ना कि n factorial को हम जहाँ तक लोड है n into n minus 1 into n minus 2 factorial भी लिख सकते हैं. So 6 factorial, 2 factorial को लिख दिया 2 into 1. 6 factorial से cancel, 2 4s are 8, 4 7s are 28 is our answer. Okay बच्चा. Now question number 4. If 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial is equal to x upon 8 factorial, find x. हमने क्या करना है, 8 factorial को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 factorial upon 6 factorial plus 8 factorial upon 7 factorial is equal to क्या रह गया, ओनली x. 8 factorial को हम यहाँ 6 तक ओपन करोगे, 8 into 7 into 6, यहाँ 7 8 into 7 factorial, 7 factorial से 7 factorial cancel, 6 से 6 factorial, 8 7s are 56 plus 8 और 56 कितना आ गया हमारे पास बेटा, 64. This is our answer. Understand? Now फिफ्थ क्वेश्चन में भी n और r की वैल्यू में गिवन है. फर्स्ट क्या करना है, आपने n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6 और r की वैल्यू 2. दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. अब इसको सॉल्व कर लो, 6 अपॉन 2 4 फैक्टोरियल आ जाएगा. यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. सेकेंड पार्ट भी आपने सीख करना. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट. देखो कितना इजी चैप्टर है ना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इन दिस एक्सरसाइज वी अप्लाई द परमुटेशंस फॉर्मूला. ओके. Now exercise 7.3, there are applied the permutations formula. How many 3-digit number can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit can be repeated? That means 9 में से हमें कितने digit लेने हैं बेटा, 3. 9p3. That means n digit में से r digit यूज करना है. तो npr का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल upon n minus r factorial. That means 9 upon 9 minus 3, that is a 6 factorial. Now solve it. This is 9 into 8 into 7 into 6. 6 factorial से बेटा 6 factorial cancel. 9 8s are 72. 72 into 7, that is 500. This is your answer. Now second question. You will have to try 4-digit number लेने हैं. Again no digit can be repeated. So again you have to try this. Third question. How many 3-digit even number? Even number बनाने हैं. That means even number कौन कौन से हमारे पास 2, 4 and 6. That means हमारे पास लास्ट डिजिट तो एक नंबर फिक्स ही हो गया कि या तो वो 2 होगा या 4 होगा. बाकी हमारे पास जो जितने डिजिट बचे, टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं. 6 रह गए, बट एक डिजिट हमारा फिक्स हो गया इवन नंबर के लिए. दैट मीन्स कोई हमें एट द फ्रॉम द 5 नंबर में से कोई 2 सिलेक्ट करने हैं. सो दैट्स वाई जो थर्ड का आंसर आएगा वो 5p2 आएगा. बिकॉज इवन लास्ट इवन डिजिट इज फिक्स, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि वो नंबर क्या बनना चाहिए, इवन. इवन दैट मीन्स वंस प्लेस पे या तो 2 होगा या 4 मीन्स लास्ट डिजिट इज फिक्स. तो हमने 2 डिजिट फिक्स करने के लिए हमें 5 में से कोई भी 2 नंबर लेने पड़ेंगे. अंडरस्टैंड. फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द नंबर 4-digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated. 4-digit नंबर बनाना है. दैट मीन्स कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स 5 में से कोई भी 4 नंबर ले लोगे बेटा हमारे पास. अगेन सॉल्व सेम थिंग. नंबर विल बी इवन. अगर इवन नंबर है अगेन बेटा 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, तो हमारे पास 5p3. ये सेकेंड पार्ट का आंसर.
Now you have to solve it. Okay. Now fifth question, from the committee 8 persons, in how many ways we can chairman and vice? 2 पर्सन चूज करने हैं. One person can't be hold more than one position. एक पर्सन के पास 2 पोजीशंस नहीं हो सकती. ऑब्वियस है कि एक पर्सन की डेजिग्नेशन एक ही होती है. सो दैट्स व्हाई वी चूज 8 में से कोई भी 2 पर्सन ही है जो वो चूज करेंगे. दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन. ओके. नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा हमारे पास, n-1 p3 रेशो np4 is equal to 1:9 है. We have to calculate the values of n. Apply the formula n-1 factorial upon n-1 minus 3. ये कितना आ जाएगा हमारे पास, n up minus 4 upon n factorial over n minus 4 factorial is equal to 1/9. रेसिप्रोकल करोगे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा. तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9. क्या हम n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना कि जहाँ तक हमें जरूरत होती है तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. यस और नो? सो दिस इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n को हमने क्या लिख दिया, n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर 1/9. n-1 से n-1 फैक्टोरियल कैंसल. सो 1/n इज इक्वल टू 1/9. दिस implies n is equal to. Understand this question? Seventh question you will have to try yourself. Again, eighth question, how many words with or without meaning can be formed? All the letters. 8 letters है equations के सभी, और letters not are repeated. So इसका आंसर हमें 8 आएगा. Now you have to solve this permutation of the 8th question. Now come to the question number 9. Now in the question number 9, how many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday, assuming that no letter can be repeated if 4 letters can be used. Monday में total how many totals number letters are there? 6. तो 4 digits लेंगे तो 6p4. Solve it. 6 factorial upon 6 minus 4 कितना आएगा बेटा हमारे पास, 2 factorial. Solve it करो बेटा. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial. 2 factorial से 2 factorial कैंसिल हो जाएगा. 6 5 सा 30 into 12 4 3 सा 12 ना, तो 30 into 12 दिस इज अ 360 टोटल वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग. सेकेंड पार्ट में पूछा ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. सभी लेटर्स को एक टाइम यूज करना है. दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल. सो दिस इज अ 7. ओके. ऑल लेटर्स आर यूज्ड. थर्ड पार्ट में क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड. फर्स्ट लेटर इज अ वोवल. वोवल कितने हैं हमारे पास, ओ और ए. दैट मीन्स 2 आर फिक्स. बाकी कितने, 1 फिक्स हो गया तो बाकी कितने हो जाएंगे, बाकी का 1 फैक्टोरियल. सो दिस इज द थर्ड आंसर. ओके. Now 10th question is very important. And how many ways distinct permutations of Mississippi do the 4 I's not come together? पहले हम टोटल देखेंगे. जो मिसिसिपी है उसके टोटल लेटर्स कितने हैं, 11. MISSIPPI PPI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल पॉसिबल वे. तो रेपिटेशंस कितने हैं, एस कितने हैं, 4. आई कितने हैं अगेन बेटा, 4. पी कितने हैं, 2. ये हमारी रेपिटेशंस परमुटेशंस. नाउ सॉल्व इट. यू गेट 3 4 6 5 0. ओके बेटा. आईज नॉट कम टूगेदर. आईज नहीं आने चाहिए कम टूगेदर. अगर हम आई को छोड़ दें
तो टोटल कितने आई अगर 1 2 3 4 बाकी कितने रह जाएंगे 8 रह जाएंगे बिकॉज आई इज नॉट कम टूगेदर अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आईज वाला निकालो अगर आईज इकट्ठे आ रहे हैं 840 देन सब्ट्रैक्टेड 3 4 6 5 0 माइनस 8 आईज कम टूगेदर वाले निकाल लो देन माइनस and you get answer. This is our answer. 33,810 is your answer. Similarly, 11th question you have to try yourself. Now these 3 exercises are complete. In the next video, we will introduce about the combinations. Thank you so much.